Hello everyone, how are you? I hope all are fine at home. You know very well that now revision is going on. In the previous video we have discussed the first chapter power sharing. In the second video today we will discuss about the federalism, second chapter of DP. First we will discuss about what is federalism. फेडरलिज्म क्या है, जो चैप्टर का भी आपका नेम है फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. इनकी मीन्स पावर इज डिवाइडेड स्पेशली डिवाइडेड बिटवीन वेयर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म. क्लियर? व्हाट डू मीन बाय फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and the various constituent units of the country. Now we will come on the second questions. What is the main difference between unitary form of government and the federal form of government? Beta, in the previous chapter we have discussed about the example of Sri Lanka and Belgium. Belgium have adopted the federal form of government. What is the main characteristics of federal? Federal means there are the two or more levels of government, there are two tiers of, three tiers of government. But unitary form of government, we can say the example here Sri Lanka. So what is the difference between unitary form and federal? Firstly we will see कि what do mean by the unitary. Unitary मतलब only one level of government, यानी कि we can say that the central government या national government at the national level, यानी कि it means only national government या central government is having all the powers and sub units are there, various constituent units are there, but they are dependent on the national government या central government. It means central government can order to the state government. It means here in the unitary form of government, state government doesn't have any power and यूनिटरी में क्या हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट गिविंग सम पावर, बट व्हेन एवर थिंकिंग कि आई इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट टेकिंग बैक द पावर अगेन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, से वापस ले लेती पावर कि अब मुझे अपनी पावर ज़्यादा दिखानी, तो उस वजह से स्टेट गवर्नमेंट से अपनी पावर वापस भी ले लेती इसमें. एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मेनली देर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट तो है, बट इन आवर कंट्री वी हैव अडॉप्टेड द थ्री टीयर्स, यानी कि 1992 वी हैव अडॉप्टेड द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हियर इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट हैव इट्स ओन पावर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वी कैन से दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव द ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट कि यू हैव टू डू ओनली दीज थिंग्स. नो, all the things already mentions in the constitution ki which are the responsibility done by the central government or which responsibility done by the central government. It means only power is divided between the central and the state. Up to clear? But then in the unitary form of government में हम कह सकते only one level of government and he is having all the powers in his hand. The central government can pass and orders to the local government. उसमें तो कैसे central government can pass order to the local, यानी कि various constituent units को order दे सकती है. But in the federal form of government, the central government cannot order the state government to do something. So you will write down these differences: unitary form of government and the federal form of government. Clear up to now? Now we will discuss, explain key features of federalisms which have been incorporated in the Indian Constitution. Okay, according to our Indian Constitution, we will discuss about the main features of federalisms. कि what are the main features of federalisms? We can say that कौन सी features हैं जो हम elaborate कर सकते हैं. First है there are two or more levels, या there are the two or more levels of government. In our country we have adopted the third levels of government also, local government. That is the first characteristics. Explain key features of federalisms which have, तो यानी कि there are the two or more levels of government. Second, different tiers of governments have their own jurisdictions. Jurisdiction वाला they are having the legal authority to particular their own area. For example, regarding they are having the special authority या jurisdictions, we can say that the legislation, taxations and administration, they are having the separate jurisdictions.
but they will govern the same citizens, but their power where is in the we can say that the federalism where the power already mentioned in the constitution, these powers will be used by the central government, these powers will be used by the state government. If they are having any dispute arises between, so it means who will explain? Court. Court acts as an empire. Court किसकी भूमिका अदा करेगा? As an empire. Interpret the meaning कि what is the meaning of the constitution, कि which power will used by the central government, which power will used by the state government. And in the federalism यानी कि federation has the dual objectives also, to safeguard and promote the unity of the country or and accommodate regional diversity in the country. जो हमारी country के अंदर है regional mutual understandings करना. और हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं कि these are the main है. And after that, sources of revenue for each level of governments are clearly mentioned to ensure its financial autonomy. यानी कि अपने अपने एरिया में वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं. फाइनेंशियल ऑटोनोमी है, किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो ये आप इसकी की फीचर्स लिख सकते हैं फेडरलिज्म में. नाउ distinguish between the federations of holding together federation and coming together federations. These are the two roots of federations. ये two roots क्या है? What is the meaning of holding together और what is the meaning of coming together federation? Coming together, what is the example we can say here? Coming together का मतलब states come together on their own to form a bigger unit. यानी कि कई स्टेट्स एक साथ मिलकर आते हैं एंड दे फॉर्म ए बिगर यूनिट, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं अपनी. एंड दे हैव इक्वल पावर एंड आर इक्वली स्ट्रॉन्ग विद द फेडरल गवर्नमेंट. और सभी स्टेट के पास इक्वली पावर होती है. बट फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं यूएसए एंड ऑस्ट्रिया. ये आपका 1 मार्क्स में भी बन सकता है. विच आर द टू कंट्रीज, यू कैन गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ विच कंट्री have adopted the holding together federation, USA and Austria. But in our country, coming together federation. In coming together federation का मतलब क्या होता है? The central government stands to be more powerful comparatively to the state government. Coming together federations का मतलब क्या है? Central government is having the more power. यानी कि who is having the all the powers या more powerful comparatively to the state government. But here all the states come together to hold the powers equally, but here central government is more powerful comparatively to the state government. And here a large country decides to divide the power between the constituent states and the national governments. And what are which countries are the examples? India, Spain and Belgium are the examples of coming together federations. Now next, how are the powers डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर, कि स्टेट्स और सेंटर के बीच में पावर कैसे डिवाइड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 3-fold डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेजिस्लेशन पावर की गई है. 3-fold डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर को अडोप्ट किया गया. क्या है 3 पावर्स का मतलब? यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हो नेशनल लेवल पर जो हाउ आर द पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, कि कैसे स्टेट और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग स्टेट्स और सेंटर के बीच में पावर डिवाइडेड है. दे हैव अडोप्टेड द विच मेथड? द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और वी कैन से दैट द कंकरेंट लिस्ट. इसमें आपको एलोबरेट करना है कि यूनियन लिस्ट किससे रिलेटेड है? नेशनल से रिलेटेड. तो देन हु विल मेक या फ्रेम द लॉज ऑन दैट ऑन द इन द यूनियन लिस्ट? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. दीज आर द, जैसे आपका फॉरेन, बैंकिंग, करेंसी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनियन. स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही उसके ऊपर क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है उसके ऊपर. ये आपके एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे ट्रेड, कॉमर्स, पुलिस, एग्रीकल्चर्स एंड इरिगेशंस. दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट. अब नेक्स्ट आता है आपका कंकरेंट लिस्ट. हु कैन मेक द लॉज ऑन द कंकरेंट लिस्ट? बोथ स्टेट एंड सेंटर, बोथ दे कैन मेक द लॉज. वो दोनों बना सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप में इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? जैसे एडुकेशन आप दे सकते हो, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिजेस, एडॉप्शंस एंड सक्सेशन, ये आपके आ जाएंगे कंकरेंटली. बट इफ दे आर हैविंग एनी डिस्प्यूट्स ओवर
the matters of the concurrent list, so then finally who will take the decision? So then after that central government will take the final decisions. क्लियर? यानी कि आप में इसको क्या करना है, 3 लिस्ट को मेंशन करना है इस वाले क्वेश्चन की, हाउ आर द पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली प्रोवाइडेड है, क्या दिया है, 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर्स, ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। आपको एक्सप्लेन करना है यूनियन लिस्ट के क्या मैटर हैं, स्टेट लिस्ट को और कंकरेंट लिस्ट। एक लिस्ट और बचती है आपकी, इसके अंदर आता है रेसिडुअरी पावर्स, द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट। द लेफ्ट ओवर मतलब जो यूनियन लिस्ट में आ चुके हैं आपके, स्टेट लिस्ट में एंड कंकरेंट लिस्ट, द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट विच डोंट फॉल इन एनी 3 कैटेगरीज। यानी कि जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट वो किस में डाल दिए गए, रेसिडुअरी सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दीज सब्जेक्ट्स यानी कि दे हैव इंट्रोड्यूस आफ्टर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इंट्रोड्यूस हुए, तो दैट्स वाई दे हैव kept in the which list, residuary powers. But on the residuary list, who can frame the laws, who can make the laws? Only center can make the laws. If clear? और concurrent list में both state and the central government can make the laws. But if they are having any dispute, then who will take the final decision? Only central government. Clear? In that you will explain 3. What you will explain? 3 list. और after that residuary powers you will also explain. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरेशन, कि इंडिया को क्या है जो फेडरेशंस बनाती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ है जिसको हम बोल सकते हैं कि इंडिया को फेडरेशंस बना सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि अंडर ए फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट ईयर्स का मतलब 3 लेवल्स या 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स रहेंगे। एंड इंडिया हैज़ 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स आपको क्या लिखना है, देयर इज ए 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी आपको ऐड करना है, देयर इज ए 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स आपको करना है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट लिस्ट। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है इसके अंदर भी, और कंकरेंट लिस्ट क्या है, आपको इसमें एक्सप्लेन करना है ये पॉइंट सेकेंड। क्लियर? थर्ड पॉइंट आप इसमें क्या ऐड करेंगे, दिस शेयरिंग ऑफ पावर इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी चेंज अलोन पार्लियामेंट। यानी कि जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी हुई है, तो खाली ओनली यानी कि पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज। इफ दे वांट टू चेंज एनीथिंग, तो व्हाट शुड बी रिक्वायर्ड फॉर दैट, इट रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी। यानी कि अगर उसमें कोई करता है 2/3 मेजोरिटीज ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इफ दे वांट टू चेंज एनीथिंग, तो कितनी होना चाहिए, कितना मेजोरिटी होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज। क्लियर? ये हमने यहाँ तक किया, 3 पॉइंट्स हमने किए। अब 4th पॉइंट इसके अंदर क्या जाएगा आपका, दिस इन ए फेडरेशन जुडिशरी सोल्व द डिस्प्यूट्स। हु विल सोल्व द डिस्प्यूट्स हियर? जुडिशरी बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं इनके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो दो हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट एंड द Supreme Court make a decision. So then who will take the decision here? Supreme Court and the High Court will make a decision. Make a decision. तो clear? How is federations practiced in India? यानी कि एक तो हमने किया जो इन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, डिफरेंट ईयर्स या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर गवर्न द सेम सिटीजन्स। इन आवर कंट्री वी आर हैविंग द 3 levels of government, central, state and the local level. And second point, what we can write down in second points, what we can write, same 3-fold distribution of legislative powers, यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच में आपको एक्सप्लेन करना है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट का एग्जाम्पल बताना है। और थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखना है इसके अंदर बेटा, दिस शेयरिंग ऑफ पावर इज बेसिस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी चेंज अलोन बाय द पार्लियामेंट। और चेंज करने के लिए क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। If they are having, who will solve the dispute? If they are having any dispute here, 4th point में क्या लिखेंगे, judiciary solve all the disputes between different levels of the government. It means High Court and the Supreme Court make a decision if they are having any disputes. Clear? Now what do you mean by, how is federations प्रैक्टिस इन इंडिया, कि प्रैक्टिकली हमने इंडिया में कैसे फेडरेशंस को अडोप्ट किया हुआ, क्या क्या अडोप्ट किए। इसके लिए बेटा हमने 3 मेथड अडोप्ट किए हैं, लिंग्विस्टिक,
लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये आपको तीनों एग्जाम्पल देने हैं, आपको इनको इलोबरेट करना है। अगर बेटा 5 मार्क्स में आता है तो आप इसको थोड़ा और इलोबरेट कर दो, अगर खाली 3 मार्क्स में पूछता है तो इसमें आप लिंग्विस्टिक बेस पे आप फर्स्ट पॉइंट लिखना शुरू करोगे, जो 1947 से अब तक जो हमारा कंट्री का जो बाउंड्रीज है वो कितना चेंज हुआ है। और मेनली हमने स्टार्टिंग में अपनी कंट्री का जो था स्टेट किस बेसिस पे बनाए थे, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि जो लोग जैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट में रहेंगे, ये बेसिस बना हमारा। लेकिन बाद में लैंग्वेज को ना आधार मानकर हमने किसको बना लिया गया, कल्चर, एथेनिसिटी, ज्योग्राफी को। जो आप देखो 3 स्टेट बने, नागालैंड, झारखंड एंड उत्तराखंड, ये इस बेसिस पर बनाए गए थे। फिर बाद में इसका अपोजिशन हुआ कि इससे तो हमारी कंट्री क्या होगी, डिसइंटीग्रेट ऑफ द कंट्री, इससे तो हमारी कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी एंड इट विल बी हार्मफुल फॉर द कंट्री, यूनिटी नहीं रहेगी हमारी कंट्री की ऐसे। तो उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया कि लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट नहीं बनाए जाएंगे ऐसे। पर बाद में क्या हुआ कि लैंग्वेज बेसिस पर बनाने से क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं वहाँ रहेंगे, तो क्या होगा, इससे कंट्री में यूनिटी आएगी, यूनिटी ऑफ द कंट्री होगा। और साथ के साथ क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन को करने में क्या होगा, ईजी होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडियन वाले साउथ में जाएंगे तो ना हम उनकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे ना वो हमारी को, तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी और उनके लिए भी होगी। तो ईजिली मतलब हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो ईजिली एडजस्ट नहीं होगा कोई भी काम करने में। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है लिंग्विस्टिक स्टेट पे बेसिस पर 4-5 लाइन्स में आपको लिखना मेन पॉइंट्स। फिर आपका आएगा लैंग्वेज पॉलिसी। आप में इसमें बताना है पूरा कि कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, कितने उसके सब पार्ट्स हैं, कितना % लोग हिंदी यूज़ कर रहे हैं, जैसे 41% के आसपास आपका। फिर उसके बाद आपका आएगा कि नो ऑफिशियल लैंग्वेज, नो नेशनल लैंग्वेज वी हैव अडोप्टेड, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारी, हिंदी एंड इंग्लिश। पर 1965 में क्या हुआ कि जो इंग्लिश थी इसको भी स्टॉप कर दिया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसका अपोज करने वाला जो स्टेट था तमिलनाडु, क्योंकि साउथ में हिंदी नहीं समझते थे। तो बाद में क्या डिसाइड किया गया कि हिंदी और इंग्लिश बोथ विल बी यूज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कितनी लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस माना है, 22, और अकॉर्डिंग टू विथ शेड्यूल 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग 22 लैंग्वेजेस को अडोप्ट किया गया है शेड्यूल लैंग्वेजेस में, और 8th शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने इनको ऐड किया इसके अंदर। क्लियर। अब बाद में आपको बताना है सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा है, जिससे हमारा फेडरेशन प्रैक्टिस पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना बेटा लिंग्विस्टिक स्टेट पे, फिर लैंग्वेज पॉलिसी एक्सप्लेन करना आपको 6-7 पॉइंट्स में, फिर आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन करना है कि बाद में यानी कि कौन सा एरा स्टार्ट हुआ जब से हमारा मतलब जो सेंट्रल स्टेट लेवल पर भी रीजनल पार्टीज़ का स्टार्ट हुआ आफ्टर द 1990 के बाद जो हमारा एरा स्टार्ट होता है उसमें आप कह सकते हो। ये आपको पूरा ये भी 4-5 लाइन्स में, अगर 3 मार्क्स का आता है तो बेटा 5-5 लाइन्स में आप तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप इसको और इलोबरेट करोगे, मेन पॉइंट्स आप लिखोगे, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स सबके आपको लिखने होंगे उसमें। क्लियर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले ली गई एंड गिवन टू द लोकल गवर्निंग बॉडीज, यानी कि लोकल गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ये खाली कई बार 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। इट मीन्स व्हेन द पावर इज टेकन away from the central and the state government and given to local government. So that's why we have given that power decentralization we have adopted in which year 1992. Before 1992 we don't have the regular elections also local government bodies के लिए, ना रिजर्वेशन सीट्स थी वीमेंस के लिए, ना कोई स्टेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन था, कुछ भी प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब 1992 के बाद से क्या हो गया, जो थर्ड ईयर्स या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना हमारा, तो प्रॉपर प्रोसीजर से काम हो रहा है। जो आप जिसको आपको गांव में बोलते हैं ग्राम पंचायत बोलते हैं ना, लोकल गवर्निंग बॉडी जो आपकी है, और सिटीज़ में म्यूनिसिपलिटीज़। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ अब डिसेंट्रलाइजेशन का क्यों सोचा हमने। एक तो बेटा डिसेंट्रलाइजेशन से क्या बेनिफिट हुआ, जो लोकल प्रॉब्लम्स है दे कैन सोल्व एट द लोकल लेवल। जैसे गांव की कोई प्रॉब्लम हुई, गांव के मुखिया ने सरपंच ने वहीं उसकी सोल्व कर दी, अब उनको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है।
और इट मीन्स यानी कि लोकल पीपल दे कैन अंडरस्टैंड इन द बेटर वे कि विच प्रॉब्लम्स रियली दे आर फेसिंग, अपने ही गांव की प्रॉब्लम्स को इजीली समझते हैं कि भाई ये हमारे जो सिटीजन्स है रियली किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं हमारे गांव, तो इजीली दे कैन सोल्व। और सेकंड इससे क्या बेनिफिट हुआ, यानी कि ईच पर्सन कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि वो बता सकते हैं अपने गांव के मुखिया को इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन कि ये होना चाहिए, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, यानी कि दे आर टेकिंग पार्टिसिपेट डायरेक्टली। तो इससे जो हमारी डेमोक्रेसी क्या हो रहा है, डीपन और गहरी बनती जा रही है, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी की रूट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है उससे, तो बेनिफिट हुआ इससे भी। और साथ के साथ लोकल गवर्नमेंट बॉडी से क्या हुआ, इसमें हमने रिजर्वेशन दिया, जैसे रिजर्व सीट्स कर दी जो अब सोशल ग्रुप्स हैं उनके लिए भी, और साथ के साथ वीमेंस के लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व है, तो उससे भी बेनिफिट हो रहा है। और अब क्या बेनिफिट हो गया, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। क्लियर। व्हाट इज पंचायती राज, पंचायती राज क्या है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज। ऑन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया बेस्ड, अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट, कौन से संशोधन के द्वारा, 73rd। और जो म्यूनिसिपैलिटीज आएगा बेटा वो कौन से के अकॉर्डिंग आएगा, 74th। 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कई बार कि जो आपका पंचायती राज है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू अडोप्ट किया, 73rd, और म्यूनिसिपैलिटीज अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट, 74th। और इन विच ईयर दे हैव अडोप्टेड द डिसेंट्रलाइजेशन, आफ्टर 1992। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which language was recognized as the national language by the Constitution of India? So what answer should become here, Hindi, English? No, I am asking here national language, not official language. So what answer should become here, no, यानी कि no national language is recognized by the Constitution of India, यानी कि in our country we are not saying कि our national language हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है, no, only 22 languages are the scheduled languages, और mainly official languages हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाता है नेशनल, कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं नेशनल, तो हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, तो क्या आएगा इसका आंसर, नो, नो नेशनल लैंग्वेजेस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Which body conducts the elections to panchayat and municipalities? So who conducts the elections, panchayats and the municipalities? State Election Commission. And panchayats works in the village area and the municipalities works in the towns and the cities. Who is a mayor? Who is a mayor? Mayor कौन होता है? Mayor is the chairperson of the municipal corporation and name 2 cities which have a municipal corporation, Delhi and Mumbai. These are the 2 examples. Who administer the whole district? यानी कि whole district को कौन administer करता है? You consider district magistrates और collector. District magistrate और collectors administer the whole district. These are the basic questions. छोटे छोटे हैं लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, इनके ऊपर हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं जो क्वेश्चन है। तो हु एडमिनिस्ट्रेट्स द होल डिस्ट्रिक्ट, होल डिस्ट्रिक्ट को कौन एडमिनिस्टर करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और कलेक्टर एडमिनिस्टर द होल डिस्ट्रिक्ट्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वाज द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज टू बी स्टॉप्ड, इन विच ईयर इट वाज स्टॉप्ड, इन 1965। और विच स्टेट अपोज फॉर दैट, फर्स्टली तमिलनाडु। और सबसे पहले कि ये नहीं, ये तो गलत हुआ है, किस स्टेट ने मतलब इसके लिए अपोज करना शुरू किया, तमिलनाडु ने। व्हाट आर शेड्यूल लैंग्वेजेस, ये मैंने उस क्वेश्चंस में भी बताई थी जब हमने लैंग्वेज पॉलिसीज करे थे। व्हाट डू मीन बाय द शेड्यूल लैंग्वेजेस, हम किन को बोलते हैं बेटा, शेड्यूल लैंग्वेजेस यानी कि लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, यानी कि जो लैंग्वेजेस किसके अंदर इंक्लूड है, in the 8th schedules of the Indian Constitution are called the scheduled languages. Clear? It means those languages are included in the 8th schedule. किसमें include है, 8th schedule in the Constitution. So these languages are known as the scheduled languages. Clear? और how many scheduled languages are there in our country? 22. अगर बिसाइड्स हिंदी पूछते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा, बिसाइड्स हिंदी 21। क्लियर। नाउ व्हाट इज ए जिला परिषद, यहाँ तक हमने क्या, व्हाट आर शेड्यूल लैंग्वेजेस,
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका व्हाट इज ए जिला परिषद की व्हाट डू मीन बाय जिला परिषद क्या होता है बेटा? ऑल द पंचायत समितिज, यानी कि जो जितनी भी पंचायत समितिज ब्लॉक और मंडल, ऑल द पंचायत समितिज ब्लॉक और मंडल आर वी कैन से दैट इन ए डिस्ट्रिक्ट टूगेदर, इन ए डिस्ट्रिक्ट टूगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द जिला परिषद. क्लियर? ऑल द पंचायत समितिज या वी कैन से दैट ब्लॉक और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टूगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट द जिला परिषद. क्लियर? फिर सुनो ध्यान से, व्हाट इज ए जिला परिषद क्या है? जिला परिषद का मतलब ऑल द पंचायत समिति, जितनी भी पंचायत समितिज हैं या वी कैन से दैट ब्लॉक और मंडल, कहाँ पर? इन ए डिस्ट्रिक्ट टूगेदर, मिलकर क्या बनाती हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट ए जिला परिषद. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो व्हाट इज ए पंचायत समितिज क्या है? पंचायत समितिज ने तो जिला परिषद को बनाया. अब पंचायत समितिज कैसे बनती हैं? व्हाट इज ए पंचायत समितिज क्या होती हैं? पंचायत समितिज ए फ्यू ग्राम पंचायत. अब पंचायत समिति किससे मिलकर बनेगी? ए फ्यू ग्राम पंचायत, यानी कि कुछ ग्राम पंचायत मिलकर. आर ग्रुप टूगेदर, आर यानी कि ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म्ड ए पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल. क्लियर? जिला परिषद तो क्या आएगा? ऑल द पंचायत समितिज ब्लॉक और मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट दे कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद. और पंचायत समितिज किससे मिलकर बनेंगी? फ्यू ग्राम पंचायत. क्लियर? यानी कि भाव पंचायत समिति बने यानी कि फ्यू ग्राम पंचायत. ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म द पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल. क्लियर? इन विच ईयर वॉज ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन टेकन. डिसेंट्रलाइजेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया. डिसेंट्रलाइज व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द local government. This system is known as the decentralization, or in which year we have adopted? In 1992. Clear? In which year was a major? Better now we are discussing the short question and answer, or in the last 10 we have discussed about the especially long question and answer. When did Belgium shift from a unitary to a federal form of government? आपको फर्स्ट चैप्टर में याद हो 1970 to 1993 they have changed their constitution 4 times. They have changed their constitution Belgium 4 times. Or that time before 1993 Belgium have adopted the which form of government? Unitary form of government. But after 1993 Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. It means now regional government, यानी कि state government is also having the power. और बिफोर द 1993 हु इज हैविंग ऑल द पावर्स? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर? तो ये आपको तो यहाँ इतना ही लिखना है, समझाने के लिए बताया बेटा मैंने कि व्हेन डिड बेल्जियम, अगर ये पूछते तो आपको सिर्फ 1993 लिख के आना है. और अगर पूछते हाउ, तब आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो. बिफोर 1993 इन द बेल्जियम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडोप्टेड एंड दैट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रिवेल. His central government was having all the powers, but after 1993 they have given some power to the state government also. So clear? So that is our main definition. What do you mean by the federal? Federal ki first, what is the main characteristics of federal form of government? There are 2 or more levels of governments. Clear? There are 2 or more levels of government. So in federal, in Belgium 2 levels of government. After that they have adopted the community government also. Or in our country we are also having the central government, state government, and after the 1992 we have also adopted in the proper way local government also. Clear? Now when was the report of the states reorganizations commission was implemented? In which year it was implemented? 1956. In which year it was adopted? In 1956. It means when was the report of the states reorganization commissions implemented? So what answer should be come here beta? 1956. So dear students, today's in video we have discussed the 20 questions and answer. In the first 10 we approximately discuss about the long question and answer. Here 11 to 20 we have discussed about the one word answer या one line answer. So you should properly revise it all the. If you are having any doubt, write down on a paper. Tomorrow I will take your live class also. Then we will discuss the whole chapter properly. Thank you.